Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Jaya Radha Vrindavan Chanda, Radha Vrindavan Chanda, Radha Vrindavan Chanda, Jaya Radha Vrindavan Chanda, Radha Vrindavan Chanda, Radha Vrindavan Chanda, Radhe, Jaya Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath, Swami Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath, Swami Jai Jagannath, Jai Baladev, Jai Baladev, Jai Subhadra, Jaya Sudarshan, Jaya Baladev, Jai Baladev, Jaya Sudarshan, Bhadra, Jaya Sudarshan, Jagannatha Swami, Nayana Pathagami, Nayana Pathagami Bhavatu me, Jagannatha Swami, Nayana Pathagami, Nayana Pathagami Bhavatu me, Naya Gauranita, Gauranita,
Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada, Jai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Jai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. जय विष्णुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव की जय श्री जगन्नाथ स्वामी की जय श्री श्री जगन्नाथ भगवत सुभद्रा महारानी सुदर्शन रथ यात्रा महामहोत्सव की श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय श्री श्री निताय गौर सुंदर भगवान की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो हम लोग मंगलाचरण शुरू करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जया शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं चाग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं च जीवं साविधूतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं Shri Radha Krishna Pada Sagana Shri Vishakha Namcha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashnaya Bhutale Nimate Bhakti Vedanta Swamini Tinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine विशेषा शून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नमिने गौरतिषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कञ्च राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कंचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतदास शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं भृङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये आज की
रविवार की संडे लव फेस्ट जो शिला प्रभुपाद जी ने हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मत संघ में शुरू किए थे 1966 अमेरिका में, जब उन्होंने प्रथम केंद्र स्थापना किया 22nd एवेन्यू। हाँ, क्योंकि रविवार सबको छुट्टी होता है। हाँ, सब लोग अपने दोस्तों, मित्र और के साथ अपना समय बिताना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि सोमवार से लेके शनिवार तक अपने कार्य में इतना व्यस्त रहते हैं, तो इसलिए रविवार जो एक ही दिन है जो ये समय निकाल के एक्चुअली अपने परिवार, मित्र, दोस्त को देना होता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर जो संधि और मौका हम सबको प्रदान किए कि कम से कम हफ्ते में एक बार भगवान के मंदिर में आना चाहिए, भगवान का दर्शन करना चाहिए, भगवान का कथा सुनना चाहिए, भगवान का कीर्तन सुनना चाहिए, भगवान का प्रसाद प्राप्त करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी इसलिए कहा करते थे कि एक हमारा जो जीवन है अधूरा है, चाहे हम जीवन में कितने चाहे तरक्की करें, खूब धन कमाए, खूब नाम कमाए, लेकिन जो खुशियां, जो असली खुशियां केवल भगवान ही दे सकते हैं, है ना। मेरे को एक भक्त बता रहे थे, जैसे जैसे आपके कोई परिवार है, कोई मित्र है, कोई बंधु है जो आपको मिलने के लिए आते हैं, आपको संदेश भेजते हैं कि मैं आ रहा हूं आपसे मिलने के लिए, है ना। तो आप कितने उत्साह से उसका इंतजार करते हैं, बार बार उसको पूछते रहते हैं आप कहाँ तक पहुंचे, कब तक यहाँ पे पहुंचेंगे, हाँ पहुंचने से पहले मुझे जरूर फोन करना, है कि नहीं। तो हम जब भगवान के मंदिर में जाते हैं दर्शन करने के लिए ना, तो हमको भी कितना उत्साह होना चाहिए, क्योंकि आपके कोई भी मित्र है, चाहे, क्योंकि बताते थे कि 3 प्रकार का मित्र माना जाता है। एक तो आपको कोई मित्र होंगे जो सोशल फ्रेंड, बंधु जो फैमिली फ्रेंड्स, और लेकिन तीसरा जो श्रेणी का बताया गया, भगवान स्वयं बताते हैं कि सुहृद। सुहृद मतलब कि आपके सबसे निकटतम मित्र। ना आपका कोई मित्र हो सकते हैं, ना आपका कोई बंधु हो सकते हैं। तो भगवान इसलिए बताते हैं कि मैं ही आपके सबसे निकटतम मित्र हूँ। भोक्ताराम जगत तपसाम सर्वलोक महेश्वर सुहृदाम सर्वभूतान ज्ञानत्वम माम शांतिम पृच्छति। आपको कितने भी कोई भी मित्र है, बंधु है, आपको कुछ धन दे सकता है, कुछ आयस दे सकता है, कुछ, लेकिन कृष्ण का जो भक्ति है, कृष्ण का जो प्रेम है, वो कोई नहीं दे सकता है, कि केवल कृष्ण ही दे सकते हैं। या कृष्ण के जो निकटतम व्यक्ति है, कृष्ण के जो भक्त है, शुद्ध भक्त है, वही आपको प्रदान कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान के भक्तों से मिलने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए हमको इतना उत्साह होना चाहिए, हमको इतना लालायित होना चाहिए, क्योंकि वही केवल भगवान ही दे सकते, भगवान के आ, भक्त ही प्रदान कर सकते हैं, बाकी कोई प्रदान नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने इतने सुंदर जो, हरे कृष्ण, जो सुंदर इतने अच्छे मौका उपलब्ध कराए कि सब भक्त लोग ने इकट्ठा आना चाहिए और कुछ सेवा करना चाहिए, कथा कीर्तन सुनना चाहिए, और अंतिम में भगवान का प्रसाद का आस्वादन करना चाहिए। यही जीवन का परम लक्ष्य है कि नहीं। तो हम कितना सौभाग्यशाली है, ये अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ से एक सदस्य रूप में। हाँ, अपने आप को बहुत गर्वित समझना चाहिए, और जब कभी हमको मौका मिलता है तो उसका फायदा उठाना चाहिए। लोग भगवान के मंदिर में जाते हैं जरूर, ये सोचे कि मैं जाके भगवान का दर्शन करूंगा, है ना।
तो कभी मंदिर भीड़ रहता है, कभी दर्शन नहीं मिलता है, कभी हमारे पास समय नहीं रहता है, या कभी भगवान का पट बंद है तो हम नाराज हो जाते हैं ना। लेकिन हम भगवान को तो देख नहीं पाते, या अगर देख भी लिया तो दर्शन कर लिया तो कितना समय तक हम भगवान का दर्शन करेंगे, है ना। ज्यादा समय दर्शन नहीं कर सकते, 5-10 मिनट हो गया तो उतना हो गया। क्योंकि जिस व्यक्ति के बारे में हम जाने नहीं, व्यक्ति व्यक्ति के बारे में हम सुने नहीं है, तो उस व्यक्ति को बार बार दर्शन करने व लंबी समय तक दर्शन करने में आनंद थोड़ी ना मिलेगा, नहीं मिलेगा, है ना। और हमारा इतना व्यस्त है, इतना चिंता रहती है। तो इस प्रकार जगन्नाथपुरी में जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन के अंतिम 18 साल जब जगन्नाथपुरी में रहे, जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ, पिछले क्लास में हमने इसका वर्णन किया था। इसमें कोई अंतर नहीं है, जो भगवान श्याम सुंदर है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में आए तो उन्होंने जगन्नाथ जी को श्याम सुंदर के रूप में दर्शन कर रहे थे। यशोदा नंदन श्याम सुंदर को भी यशोदा करने थे, कृष्ण से अभिन्न है। तो लेकिन जगन्नाथ इतना अद्भुत है कि हर श्रेणी के व्यक्ति, हर श्रेणी के जगन्नाथ जी के साथ उनका आदान प्रदान होता है, जो जैसे जिस भाव से उनको देखना चाहते हैं। तो इसलिए वो जगत का नाथ है, जो जगत का स्वामी है, सबके नाथ है। हाँ, इसलिए भागवत में वर्णन आते हैं प्रथम स्कंद में, एक सनाथ और दूसरा है कि अनाथ। सनाथ मतलब जिसके स्वामी है, मालिक है, प्रभु है। और जो अनाथ है, जो उसके कोई मालिक नहीं है, कोई प्रभु नहीं है, कोई स्वामी नहीं है ना। तो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जैसे हम रास्ता में देखते हैं कि जो फालतू जो कुत्ते घूमते रहते हैं और जिसके गले में कोई पट्टी नहीं है ना, घर घर के ठोकर खाता रहता है, कोई उसको पिटाई करता है, कोई भगाता रहता है, गर्मी में, ठंडी में, है ना, बारिश में, तो कोई, क्योंकि कोई मालिक नहीं है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि कुछ कुत्ते होते हैं, बड़े हट्टे कट्टे रहते हैं, और उनके गले में क्या रहता है, पट्टी लगता रहता है, और चेन के साथ बंधा रहता है, और वो कुत्ता आगे जाके चलता रहता है, उसके पीछे एक व्यक्ति उसका पीछा करता रहता है ना। तो लगता है कि एक्चुअली वो जो कुत्ता है उस मालिक का सेवक है, लेकिन वो जब चलता है तो कुत्ता आगे चलता है और मालिक उसके पीछे पीछे भागता रहता है। प्रभुपाद जी कहते हैं, है ना, कि अगर अमेरिका में जाएंगे तो वहां का नियम इतने कड़े हैं, तो वहां पे जैसे भारतीय जैसे लोग अपने कुत्ते को घुमाने के लिए लेके जाते हैं और रास्ता पे वो टट्टी पेशाब करते हैं, हाँ, कोई परवाह नहीं है, गंदा करते हैं। लेकिन वहां पे ऐसा नियम कड़ी कड़क है, ऐसा, इसलिए उस व्यक्ति को, मालिक को क्या करना पड़ता है, अपने हाथ में ग्लोव्स पहनता है और वो पॉलीथीन लेके जाता है। अगर कुत्ता मल त्याग करता है तो उस मल को संग्रह करके फिर उसको उचित जगह पे उसको डालना पड़ता है। हाँ, तो इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि हम सब भगवान के सेवक है। मम वंश जीव लोको जीव हो तो सनातन। हाँ, हाँ, यही हमारा परिचय है। तो लेकिन अभी हम भगवान को भूल गए हैं, यहाँ मालिक बनना चाहते हैं, गॉड बनना चाहते हैं, लेकिन हम कभी गॉड नहीं बन सकते हैं, हम विपरीत बनेंगे। अगर गॉड को हम उल्टा करते हैं तो जीओडी गॉड और डीओजी डॉग, है ना। तो इसलिए हमने भगवान का सेवा करना चाहिए, भगवान का भक्त का सेवा करना चाहिए। अभी उनको इनको भूल गए, इसलिए हमको किसका सेवा करना चाहते हैं, कुत्ते का सेवा करना पड़ता है। हाँ, कुत्ता की भी सेवा, मतलब अभी तो बोलेंगे ठीक है भगवान का सेवा करेंगे तो, लेकिन हमारा परिवार है, बच्चे है, संसार है, हाँ, हमारा, तो हाँ, अगर उनका भी सेवा कर सकते हैं, अगर वो वो भी, अगर, क्योंकि हमारा ये है कि हमारा ये जीवन क्योंकि वो भी, हम भगवान के संतान हैं, वो भी भगवान के संतान है, तो इसलिए हमारा परिचय उनके साथ है। अगर वो भी भगवान को भूल जाते हैं हम, तो फिर हम उनको सेवा कैसे कर सकते बताए, है ना। तो इसलिए जरूर उनका सेवा करना चाहिए। तो ये सोचते कि ये मेरा दायित्व है, ये मेरा ड्यूटी है, क्योंकि मम में जीवलों को जीव तो सुनाता है ना, क्योंकि उन्होंने
वो भी भगवान के संतान है, मैं भी भगवान का संतान हूँ, इसलिए उनका परिवार करना, उनका लालन पालन करना, उनका देखभाल करना, उनको कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ाना, हाँ हाँ, तो ये हमारा कर्तव्य बन जाता है। इसलिए भागवत में श्लोक में बताते हैं, गुरु न पश्चात पिता न पश्चात स्वजन पश्चात। तो हमको गुरु नहीं बनना चाहिए, माता नहीं बनना चाहिए, पिता नहीं बनना चाहिए, स्वजन भी नहीं बनना चाहिए। अगर हमारे ऊपर जो आश्रित है, अगर हम उनको ये जन्म मृत्यु चक्र से अगर हम उनको मुक्त नहीं करा सकते हैं, तो ऐसा संसार में कोई है आपको, चाहे कितने भी देवता है, कितना भी देवियां हैं, कोई बड़े बड़े लोग हैं, धनी हैं, हाँ, कोई क्रिकेट स्टार है, कोई फिल्म का स्टार है, कोई मंत्री है, तो ऐसा कोई है कि दावा कर सकता है कि मैं आपको ये जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी से मुक्त दिला सकता हूं? नहीं। लेकिन भगवान बताते हैं, ठो करके भगवान बड़े बड़े आवाज में भगवान बताते हैं कि मैं ही आपको उद्धार कर सकता हूँ, क्योंकि भगवान का नाम है मुकुंदा, मुक्तिदाता, है ना। तो इसीलिए ऐसा भगवान के शरण में हमको जाना चाहिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे, और नित्य प्रतिदिन जगन्नाथपुरी में महाप्रभु सुबह के समय आके जगन्नाथ का दर्शन करते थे। हाँ, उसी समय एक बार ऐसा हुआ कि अपने जो जिस लोग ने जगन्नाथपुरी गए हैं, मुझे लगता है कि 99% लोग तो जगन्नाथपुरी में गए हुए, गए होंगे ना। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण बोलिए अगर जो लोग गए होंगे। हरे हाथ कृष्णा। उठाइए। हाँ हाँ। तो जगन्नाथ मंदिर में जाएंगे तो भगवान का तो विग्रह बिल्कुल बहुत ही एकदम पीछे रहता है, और कम से कम 200 मीटर की दूरी पे जो भगवान के प्रिय जो इनका सेवक है, उनका वाहन है गरुड़ जी, जहाँ पे पीछे खड़े हैं, गरुड़ स्तंभ, वहां से पहले जगन्नाथ जी का भगवान का दर्शन करना पड़ता है ना। लेकिन जगन्नाथ जी भी इतने बड़े बड़े हैं, इसलिए तो उनका अगर आप आंख देखेंगे, उनके आंख में पलक नहीं है, अपलक। हाँ, हमारे आंख में पलक है ना, इसलिए गोपियां भी क्या करते हैं, ब्रह्मा जी को ठोकते हैं, एक्चुअली उनको गाली देते हैं कि आपने ऐसे कैसे आंख बनाया। हाँ, ये देखने की चीज है, मैं बार बार हम देखना चाहते हैं, लेकिन क्या है, पलक मिलता है। हाँ, लेकिन जगह हम तो देख नहीं पाएंगे, है ना। देखें भी तो क्या देखेंगे, हम देखते हैं कोई लकड़ी का ढरा है, कोई मार्बल का है, कोई पीतल का है, कोई सोने का है, चांदी का है, वही तो देखते हैं ना, कोई पेंटिंग है। लेकिन जगन्नाथ अगर भगवान हमको देखना चाहेंगे, और वो सबको देख सकते हैं, है ना, क्योंकि उनका आंख में तो पलक है ही नहीं है इतनी बड़े बड़े आंखें होते हैं, इसलिए उनका एक नाम है चक्का नयन। चक्का मतलब गोल है, नयन मतलब आंख है एक्चुअली, तो वो सबको देख सकते हैं एक्चुअली, कहीं पे भी रह सकते हैं। ऐसा जरूर नहीं है कि आप उनके सामने ही जाने से तो आपको देख सकते हैं, नहीं, नहीं देख पाते हैं। वो कहीं कहीं पे भी रह के आपको देख सकते हैं, आपको सुन सकते हैं, आपको जान सकते हैं, है ना। वो अंतर्यामी है, वो सब कुछ जान सकते हैं, है कि नहीं। तो जब महाप्रभु एक बार ऐसे दर्शन कर रहे थे पीछे, है ना, आप अगर जाएंगे पुरी में दिखा होगा महाप्रभु का 3 अंगूठी का निशान अभी तक है ना, बिल्कुल गरुड़ स्तंभ के पीछे। तो वहां पे एक उड़ीसा का एक बहुत ही बूढ़ी औरत, विधवा, 60-70 साल हो गए होंगी, तो वो भी पे आके के इतना व्याकुल होके, इतना उत्साह से, उत्कंठा से एक्चुअली कि भगवान जगन्नाथ का दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन इतना भीड़ भाड़ है इसलिए कर नहीं पाती, आगे भी नहीं जा सकती है। तो उसने क्या किया, महाप्रभु के दीवार में उसमें एक पैर रख के, महाप्रभु के कंधे में एक पैर रख के, और दूसरा कंधा वो गरुड़ स्तंभ के ऊपर रख के वो भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन कर रही थी। और उसी समय महाप्रभु का जो सेवक थे स्वरूप दामोदर गोविंदा, और एक महाप्रभु के एक सेवक थे काशीश्वर पंडित, वो बॉडी गार्ड थे महाप्रभु का। है कि नहीं। तो इतना भीड़ होता है ना, हर व्यक्ति लोग देखना चाहते हैं कि महाप्रभु थे। हाँ, क्योंकि स्वयं चलन थी, एक जगन्नाथ जी जो जगन्नाथपुरी में बैठे, और ये एक जगन्नाथ जी जो है, ये चलता फिरता जगन्नाथ जी है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। हाँ, एक सचल है और एक अचल है। वो अचल है, वो चल नहीं सकते, लेकिन ये सचल है, अचली चल सकते हैं, इसमें तो चैतन्य महाप्रभु है। तो उनको जो गोविंदा, ये तो उनको इतना गुस्सा आया, चलिए, अरे
महाप्रभु के ऊपर आपने पैर रखे, कितना अपमान माना जाएगा, कितने बड़े ये है, अपराध है। तो उनको डांटते हैं, लेकिन महाप्रभु को सराहना करती है, देखिए मेरे अंदर कब ये उत्साह आएगा, हाँ मेरे अंदर कब ये उत्कंठा आएगा कि मैं तो रोज दर्शन करता हूँ। हाँ, महाप्रभु हमारे लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। हमको लगता है कि हमने देख लिया, है ना, हमने आज सुन लिया, देख लिया, आज कब हो गया, माला हो गया पद्धति। तो भगवान बोलते, महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु बोलते कि उनका अंदर इतना उत्साह है, हाँ, तो आप उनको डांटिए मत, उनको दर्शन करने दीजिए। एक्चुअली मेरे अंदर कब इतना उत्साह आएगा एक्चुअली कि उस तरह से मैं भी जगन्नाथ जी का दर्शन करना चाहिए। तो ये भाव है एक्चुअली, इस भाव से एक्चुअली हमको भगवान को दर्शन करना चाहिए, है ना। तो वृंदावन में पता है एक्चुअली कि जैसे ऐसे एक सूरदास जी है, सूरदास मतलब जिनका आंख दिखाई नहीं पड़ता, तो नित प्रतिदिन आते थे ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए। तो एक बार ऐसे बड़े सेठ आए थे मथुरा से, वो भी दर्शन करने के लिए, नीचे लंबी लाइन लगा हुए, शायद त्योहार होगा, जन्माष्टमी का पर्व होगा। तो आपने आपको बोल रहे थे कि अरे क्या इतने लोग थे, कब दर्शन मिलेगा, आप सोचते हैं। तो लेकिन उनको जल्दी जाना था, लेकिन तो देखिए इतनी बड़ी लंबी लाइन है। हाँ, फिर देखिए कि लाइन में एक अंधा व्यक्ति जो सूरदास जी वो भी खड़े हैं, है ना। तो उसको डांटने लगे, बोले क्या अंधा क्या दर्शन करेगा, आप बताइए, क्यों खड़े हैं लाइन में। तो बड़ा नम्र से तो अंधा तो बताने लगा कि हाँ मैं तो दर्शन नहीं कर सकता हूँ ठाकुर जी को, लेकिन ठाकुर जी जरूर मुझे दर्शन करेंगे, है ना। तो इस भाव से हमको आना चाहिए, ताकि हमको फायदा मिलेगा। तो मैं आज सोच रहा था कि चैतन्य चैतन्य चरितामृत के एक सुंदर प्रसंग है, हम तो लीला कथा बहुत सुने हैं। हाँ, महाप्रभु का केसर है, महाप्रभु ने जगन्नाथ जी के भक्त वत्सल जगन्नाथ, जैसे कि जगन्नाथपुरी में एक माता थी जिसका नाम था केतकी। कहा जाता है कि वो दक्षिण पश्चिम भारत से महाराष्ट्रियन थी। हाँ, तो जगन्नाथ जी के प्रति उनके इतना प्रेम हो गए, तो जगन्नाथपुरी में आने लगी, जगन्नाथपुरी में रहने लगती थी। और भगवान कृष्ण को अपने लाला समझते थे, जगन्नाथ जी को अपने लाला समझते थे, बहुत ही वात्सल्य भाव रखते थे। तो रोज क्या करते थे, सुबह उठ के उन्होंने एक खिचड़ी बनाते थी, है ना, जो चावल और उसमें छिलका मूंग, है ना, छिलका मूंग डाल के बनाती थी, और कुछ मसाला वगैरह बनाते थी, बस उतना ही अपनी थी, और बनाती थी और भगवान को बुलाती थी। और भगवान रोज एक बालक का रूप लेके उसके गोदी में बैठ के वो खाते थे, और जगन्नाथ जी कब खाते थे, सुबह सुबह अपने मंदिर का दर्शन खुलने से पहले जगन्नाथ जी खा के आ जाते थे। तो जगन्नाथ जी का जो बड़े पंडित थे, बड़े पुजारी थे, तो उसी रास्ता से आ रहे थे और उसका घर भी ऐसा था क्योंकि झोपड़पट्टी था, और घर का दरवाजा भी ठीक में नहीं था, दरवाजा चाहिए भी नहीं, क्या ऐसी कीमती वस्तु होगा कि बुढ़ी औरत के पास, गरीबी औरत के पास तो कोई चोरी करेगा, बोलते थे। तो एक दिन एक्चुअली वो खिला रही थी, तो वो पंडा जो जा रहे थे, तो उसको आवाज बाहर से सुनाई दी, ऐसे रोज सुनाई दे रहे थे, आज बड़ा होते थे कि वो बूढ़ी औरत बोल रही कि अरे खाओ खाओ खाओ, बोलते हैं वो खिला रहे थे जबरदस्ती। और ये पंडा को भी पता था एक्चुअली कि ये तो अकेली है, बूढ़ी औरत है, और उसका कोई नहीं है, उसको कौन खिला, कौन है, और सुबह सुबह कौन होते हैं, है ना। तो उसका बड़ा आश्चर्य हुआ, तो उसने थोड़ा जाके झांक के देखा, तो देखा कि बूढ़ी औरत है और गोदी में एक छोटा बालक बैठा है। तो ये पंडा भी कोई ये नहीं है जो जगन्नाथ जी को खिलाते हैं रोज, है ना। तो और जगन्नाथ जी जिसको दर्शन देना चाहते हैं, जगन्नाथ जी जिसको पता बताना चाहते हैं, तो वो समझ गए कि यार ये तो स्वयं कृष्ण है, जगन्नाथ जी है। हाँ, तो वो तो चले गए फतेहते। तो उसने पंडा ने इस औरत को डांटे, बोले कि आपको पता है, तो ये स्वयं जगन्नाथ जी है, जगत का नाथ है, मतलब अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक है। आपको बता देते कैसे होते हैं, जगन्नाथ जी को खिलाने के लिए 16 उपाचार होता है, स्नान दान करना पड़ता है, मंत्र आदि पाठ करना पड़ता है, मुद्रा आदि करना पड़ता है, तभी तो भगवान ग्रहण करेंगे। ऐसे कैसे आप दे देते हैं? तो उसने बोला कि मुझे क्या पता है, रोज तो मुझे आके मांगती है, और मैं सोचता हूँ कि ये है भूखा है इसलिए मैं खिला देती हूँ। बोले नहीं, कल से आप ऐसे नहीं कर सकते,
अगर आपको खिलाना है तो ये मंत्र तंत्र सब उनको सिखाए हो कहते हैं। वो क्या सीखेगी अपनी कुत्तों के सीख लिए उसने तो नहीं। और दूसरा दिन तो उठी उसने, उठ के तो पहले तो कोई स्नान बंधन नहीं करती थी। और पहले तो जमाने में स्नान स्नान करने की सुविधा भी नहीं था थी, है ना। अभी तो अटैच बाथरूम आ गया, तो गर्म पानी आ गया तभी नहीं। तो कैसे भी करके उसने क्या की, तो फिर साफ सफाई की, साफ सफाई करके अपने बनाई खिचड़ी, तो लेट हो गया आत्महत्या। आई आप इसमें में जगन्नाथ जी आगे बालक मन के बोले, अरे वाह जल्दी कर, मेरे को देर हुई है, जल्दी कर आत्महत्या। तो बोले कि यार तैयार नहीं हुआ आत्महत्या, रुकी आत्महत्या, क्योंकि मेरे को तो पंडा सिखा के गए, मैं ऐसे आपको नहीं खिला सकती। हाँ कैसे भी करके भगवान ने खाए, खा के एक्चुअली भागे और अपने मुंह धोने के लिए भूल गए आत्महत्या, देर आत्महत्या। और आके अपने मंदिर में पहुंच गए आत्महत्या। और उसी दिन पंडा जी आए, दरवाजा खोले, दरवाजा खोल के देखे कि यार जगन्नाथ जी का वहां चावल लगा हुआ है इसमें तो उनको बड़ा प्रिय हुआ इसमें हाँ। और उसने तो फिर जगन्नाथ जी बोले, अरे वो मेरा भक्त है, वो मेरे को जैसे भी खिला रहे हैं, मैं उनसे आत्महत्या जी, तुम्हारा क्या उसमें ये है। हाँ तो आपको ऐसे क्यों जाके इस मंत्र तंत्र यंत्र उससे सिखाया एक्चुअली मैं तो इसलिए मुझे लेट हो गया मैं। तो दूसरे दिन से माफी पंडे आके उस माता जी को माफी मांगे। तो कौन महान इतना माता जी हो सकते हैं जो जगन्नाथ जी जाके उनके हाथों से एक्चुअली गोद में बैठ के खा रहे एक्चुअली उनके thing। इसलिए भगवान बताते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तो जम भक्त पराचितात्म प्रयतात्म स्नावा। तो भगवान को भक्ति करने के लिए ऐसे कोई आपकी कोई बड़ी धनी बनना नहीं है, कोई बड़ी ज्ञानी बनना चाहते थे। कोई एक शुद्धता बनने की जरूरत नहीं है नहीं। केवल भगवान क्या करते हैं, प्रेम से अगर मुझे कोई पत्र पुष्प फल स्वयं अगर पानी भी देता है मैं उसको आस्वादन करता हूँ, मैं उसको खाता हूँ। क्यों नहीं खाएंगे, हमको भूख लग रहा है तो भगवान को भूख नहीं लगेगा। भगवान खाते हैं। हाँ अंगानी अखर, लेकिन हम खाते हैं मुंह में, है ना। लेकिन भगवान खाते हैं क्योंकि भावक रहे जनार्दन है। भगवान कानों से खा सकते हैं, आंखों से खा सकते हैं, नाक से खा सकते हैं, अपने पैर से भी खा सकते हैं। भगवान को खाने के लिए कोई आपत्ति, क्योंकि भगवान का शरीर क्या है, दिव्य सच चित आनंद से बना हुआ है। हमारे कोई कार्य करने के लिए कोई एक अंग चाहिए, निर्दिष्ट अंग चाहिए एक नहीं। लेकिन भगवान कोई भी कार्य कोई भी अंग के माध्यम से कर सकते हैं। हाँ प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान हमारा मेरे पिताजी का नौकर नहीं है कि जब भी बुलाएंगे तो बासमती है। भगवान को प्रेम से, भगवान को कमी है क्या, सहस्र सहस्र लक्ष्मी संबरम। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कि भगवान के धाम ने हजारों 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 लक्ष्मी क्या करती है, भगवान को खिलाने के लिए, भगवान को मसाज करने के लिए, भगवान का सेवा करने के लिए आगे पीछे होती है। तो भगवान को क्या कमी है कि हमारे आके हमारे भोजन लेंगे या हमारे साथ वार्तालाप करेंगे, हमारे साथ सोने, भगवान को कोई कमी नहीं है। हाँ कमी है क्या, कमी नहीं है। तो क्या कमी है भगवान के, प्रेम। अगर प्रेम से कोई अगर भगवान को खिलाना चाहता है, प्रेम से कोई भगवान को पुकारना चाहता है, प्रेम से भगवान का कोई श्रृंगार करना चाहता है, कोई छोटा सा फूल भी दे दिए तो भगवान उसका ऋणी बन जाता है। भगवान इसको कभी भूलते नहीं है। ऐसा कोई संसार का व्यक्ति है जिसको आप एक, चाहे आपके कितने निकटतम मित्र क्यों ना हो, चाहे आपके पति क्यों ना हो, है ना, आप उनको एक पत्ता दे के संतुष्ट कर सकते हैं कि आज आपने एक पत्ता खाइए, है ना, और भूल जाइए दिन भर के लिए भोजन, हो सकता है नहीं। लेकिन भगवान देखिए, एक अगर पत्ता आपने दे दिया, हाँ और जरूरी भी नहीं है तुलसी का पत्ता है ना। इसलिए प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए तो तुलसी पत्ता था ही नहीं है। हाँ इसलिए प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में बताते हैं कि प्रभुपाद जी के एक शिष्य जिनका नाम था गोविंद देवी, गोविंद दासी तो उन्होंने पहले बार क्या किए, जो तुलसी महारानी को वहां पे स्थापना की है और उनके इतने अच्छे सेवा किए, इतना अच्छा सेवा किए। हाँ भारत में तो घर घर में तुलसी, जंगल में कहीं पे भी उग जाता है, क्योंकि पुण्य भूमि है, देव भूमि है, भगवान की भूमि है।
कुछ करना नहीं पड़ता है, लेकिन वहां पे बहुत जत्न लेना पड़ता है, इतनी ठंडी होता है। लेकिन वहां पे भी इतनी ठंडी प्रदेश में भी इतने भर भर के इतने बढ़िया सा तुलसी उगता है। तो प्रभुपाद जी उनको धन्यवाद देते हैं। जो श्रीमद् भागवतम में प्रभुपाद जी उनका टिक में लिखते हैं तात्पर्य में, तो उनका नाम देखिए कितना ये होगा, हाँ कितने महान होंगे। क्यों, क्या थोड़ी सी तुलसी महारानी का सेवा किए, तुलसी महारानी को थोड़ा पानी दे दिया, थोड़ा मिट्टी दे दिया, थोड़ा उनका देखभाल किए। देखिए श्रीमद् भागवत में उनका नाम आ गया, थोड़ी सी सेवा किए, ज्यादा कोई बेइज्जती नहीं है। तो भगवान हमसे कुछ नहीं मांगते, भगवान केवल मांगते हैं कि आप जो भी मुझे अर्पण करते हो एक्चुअली प्रेम से अर्पण कीजिए, मैं जरूर उसको आस्वादन करूंगा, मैं कभी भूलूंगा नहीं, मैं हमेशा आपका ऋण बनेगा। हाँ शाक ना तुलसी पद्धति, जब द्रौपदी महारानी, सारे पंच पांडव जब वनवास में थे, ये दुष्ट दुर्योधन, देखिए दुर्योधन के घर में दुर्वासा मुनि आए। अब दुर्वासा का तो अम्बरीश महाराज के साथ इतना बड़ा ये हुआ था, तभी दुर्वासा मुनि का जान और वो इतने खतरे में थे, तीनों लोक में गए। भगवान विष्णु भी मना कर दिए, बोले मैं आपको कुछ नहीं कर सकता, बचा नहीं सकता हूँ, जाइए अपने मेरे भक्त के मस्त में, जिसके प्रति आपने अपराध किए उनके शरण लीजिए। आए वापस एक्चुअली दौड़ दौड़ के, 1 साल बीत गया था। हाँ उनको कथा तो पता है आपको, अम्बरीश महाराज कितने महान थे बताइए, एक राजा थे, बस सुनते थे, है ना। लेकिन भगवान उनको कितने प्रेम करते थे बताइए, कि उनका कुछ भी नहीं हुआ, एक बाला भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन वहां पे दुर्वासा मुनि, शिव जी का अंश है दुर्वासा मुनि, शिव जी का अंश है कि नहीं। लेकिन उनको ना शिव जी बचा पाए, ना ब्रह्मा जी बचा पाए, ना भगवान विष्णु बचा पाए। एक सुदर्शन चक्र भगवान का आयुध, सुदर्शन, है ना, उनको इतना प्रकोप था, कोटि सूर्य सम, सूर्य सुदर्शन का जो अग्नि जो तेज है कोटि सूर्य सम, है ना, उनका पीछा कर रहा था। तो कोई प्रश्न पूछ पड़ सकता है कि कैसे अभी 1 साल तक उनका पीछा कर रहा था, और सूर्य जो जो सुदर्शन एक क्षण में, उन्हें जो दूती जो राक्षस प्रकट किया था अम्बरीश महाराज को मारने के लिए, उनको तो एक उधर ही खत्म कर दिया। तो ये दुर्वासा मुनि को वहां मार नहीं सकता, सुदर्शन चक्र मार सकता था, लेकिन वो अपने भगवान का, वो तो मार सकता था तो फिर वो तो भगवान के पास जाते नहीं थे, भगवान को नहीं चाहते, भगवान अपने भक्त का गुणगान करने नहीं थे। भगवान चाहते थे कि अम्बरीश महाराज का गुणगान हो पूरे संसार में, मेरे भक्त का। देखिए जिसको भगवान नहीं बचा सकते हैं, लेकिन भगवान का भक्त बचा सकती है, देखिए कितने महान हो सकता है। हाँ? तो कारण यही था कि सुदर्शन चक्र उनका कुछ हानि नहीं कर रहा था, केवल पीछा कर रहा था। अम्बरीश दुर्वासा मुनि अपने महसूस कर रहे थे कि ये जो जाज्वल्यमान जो चक्र मेरे को पीछा कर रहा था, कभी मार सकता है। क्योंकि महान भक्त जो अम्बरीश महाराज प्रार्थना कर रहे थे, अम्बरीश महाराज क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे सुदर्शन चक्र को, भगवान को एक्चुअली कि वो ना जाने उनको रक्षा कीजिए, है ना। तो देखिए भगवान के भक्त इतने महान भक्त, इसलिए भगवान बोलते हम भक्तों पर आज ना, भगवान बोलते मैं भक्त के बिना कुछ नहीं, उनके हृदय में रहता हूँ, अब भक्त मेरे हृदय में रहता है, मैं केवल भक्तों को जानता हूँ, भक्त केवल मुझे ही जानता है, और कुछ भी नहीं जानता। बताइए देखिए, हाँ तो भक्त बनना कितना आसान है, देखिए बहुत ही आसान है। हाँ इसलिए प्रभुपाद जी बोलते कि आपको, क्योंकि मायावादी लोग क्या होते हैं कि आई एम गॉड, अहम ब्रह्मस्मि, मैं भगवान हूँ, सब भगवान है, इसलिए जो प्रणाम करते हैं अपने आप को बोलते ओम नमो नारायण, इसमें नारायण को, हाँ भगवान सबके हृदय में बैठे, इसलिए हमको प्रणाम करना चाहिए भक्त को, ये छोटे हो बड़े हो, सन्यासी हो ब्रह्मचारी हो गृहस्थ हो, कोई भी हो, सबको प्रणाम करना चाहिए, यहाँ तक कि चिट्ठी को भी प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उसके हृदय में भी भगवान परमात्मा के रूप में बैठे हैं। इसलिए नारद और अंगिरा मुनि जब आ रहे थे, जब मुर्गारी को उन्होंने उद्धार किए, नारद जी, नारद जी अंगिरा मुनि के साथ आपने जब जा रहे थे, सॉरी पर्वत मुनि के साथ जा रहे थे आकाश मार्ग में, तो दिखे पड़ा एक्चुअली कि वो उसी ये चैतन्य महापुरुष में बताते, मुर्गारी के जब उन्होंने उद्धार किए, बड़ा अहंकार शिकारी था, हाँ लोगों को, जानवर को मारता नहीं था एक्चुअली, आधा मार के छोड़ता था, इसको उसको इतना आनंद आता था तड़पते हुए देखते हुए। कुछ लोग का ऐसे आनंद है,
आसुरिक लोग है ना, एक दूसरे को तड़पता हुआ ना देखना, दूसरे उनको आनंद आता है। हरे कृष्ण। हाँ, तो नारद मुनि उनको उद्धार किए। कुछ नहीं बोले, आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करो बैठ के, केवल कृष्ण का नाम लो और कुछ नहीं होते। तो बोला मेरा परिवार कैसे होते हैं, बोला सब कुछ हो जाएगा होते हैं। लेकिन नारद मुनि पहले बोले कि आप जो धनुष है, इस धनुष को, क्योंकि धनुष के प्रति आपका आसक्ति है, इस धनुष के द्वारा आपने कितना जीव का हत्या किया, पहले आप उसको तोड़ दो। तो उसने तोड़ दिए, मतलब आसक्ति, इस आसक्ति को तोड़ो, है ना। हम सबका हमारा क्या बोलते हैं उसको वीकनेस अंग्रेज में बताते हैं ना, किसी किसी के पास हमारा वीकनेस है ना, अलग अलग व्यक्ति। कोई चाय नहीं छोड़ पाते, कोई कॉफी नहीं छोड़ पाते, कोई तम्बाकू नहीं छोड़ पाते, है ना, कोई बाकी अलग अलग खा सकती, कोई टीवी नहीं छोड़ पाते, कोई क्रिकेट नहीं छोड़ पाते, कोई अखबार, हाँ, कोई वीडियो गेम्स। हाँ, सबका कुछ ना कुछ एक्चुअली क्या है, कमियां है, वीकनेस है। तो नारद मुनि ने उनको बोले पहले उसको तोड़ो अपना तथी। तोड़ दिए, क्योंकि नारद मुनि को ऊपर विश्वास था। हाँ, तो बोले इसलिए श्रद्धा शब्द विश्वास करी दृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत हुए। हाँ, भगवान का ये वाणी है, भगवान का वाणी है, भगवान के वाणी पे, भगवान के भक्त पे भगवान का वाणी। हाँ, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, छठा स्कंद में श्रीमद् भागवत में बताते हैं, जो ये प्रसंग आया, अजामिल का प्रसंग आया। हाँ, लोग बोलते कि ये मेरा वाणी, आप मेरा बात सुनना चाहिए, कोई दूसरा बोलते कि आप ये बात सुनना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, नाना मति नाना मत देते हैं। हाँ, लेकिन धर्म का परिभाषा की है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान का वाणी, गीता, श्रीमद् भागवतम, महाभारत, पुराण, उपनिषद, उसका वाणी जो है भगवान में थी, उसके ऊपर हमारा विश्वास होना चाहिए, साधु के ऊपर विश्वास होना चाहिए। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो उसको तोड़ दिए, और तोड़ने के बाद फिर बैठे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 करने लगे। कि चमत्कार हो गया ना, चमत्कार हो गया। तो ये वो अपने आप खाएंगे क्या होते, इतने उनको मिलने लगा, क्योंकि सारे आजू बाजू में गांव में प्रचार हो गया, अरे इतना बड़ा खूंखार व्यक्ति था, एक्चुअली क्या थे, हरिनाम कर रहा है। लोग आए उनको मिलने के लिए, साधु बन गया। आज कोई भेंट दिए, कोई फल दिया, कोई मूल दिया, कोई अनाज दिया, कोई पैसा दिया, नहीं। इतना हो गया उनको, इतना हो गया, उनको बांटने लगे, उनको बांटने लगे, उनको बांटने लगे। हाँ, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि संसार में भोजन की कमी नहीं है, किसी कमी है, भजन की कमी है ना। इसलिए भजन करना हमारा काम है, भोजन देना गोपाल की काम है। काम नहीं करेंगे तो पापी पेट का सवाल है, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, मतलब नहीं। हाँ, एक बार तो भजन करके देख लो, कैसे नहीं खिलाएंगे भगवान, देखो कैसे नहीं खिलाएंगे। जो आपको मिलने वाला है, जो आपका तकदीर में है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा ही मिलेगा। आप ऐसे बैठे भी रहेंगे तो मिलेगा, लेकिन हम नहीं बोलते कि आपको बैठे रहो। है कि नहीं। नहीं तो गीता का प्रचार कैसे होगा, आप बताइए। हम्म, कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोले, आप बताते हैं, करो लड़ाई, मैं आपका रथ चलाऊंगा, लेकिन आपको धनुष बाण पकड़ना पड़ेगा, बस उतना ही। बाण मैं चलाऊंगा, निमित्त मात्र भव सभे सची। लेकिन आपको जाग के वहां पे बैठना पड़ेगा, है ना। भगवान ने इसको नहीं बोले कि अर्जुन, अर्जुन तो बोला था मैं चला जाऊंगा जंगल में, भीख मांगूंगा, नहीं चाहिए मेरे को लड़ाई झगड़ा। हाँ, क्या मिलने वाला है मुझे बताते हैं, है कि नहीं। निमित्त मात्र भविष्य, केवल आप निमित्त बनो, मैं ही करूंगा। करी करौड़िया में कहावत है, करी कराओ थे मोबिन्नु अन्य गति नाई। अरे कर रहे हो, है ना, करते कोई है, नाम हमारा होता है, करने वाले हो, ये प्रकृति क्रियामणि नहीं, गुणे कर्म से अहंकार करता अपने मान्यते, करने वाले वो है, लेकिन नाम हमारा होता है। भगवान के अर्जुन कृष्ण को 18 दिन क्यों लड़ाई करना था, एक कोरोना वायरस सफिशिएंट है, कोविड-19 भेज देते थे ना, सब लोग अपने आप ऐसे ही बंद करके मर जाते थे, है ना। तो भगवान, इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं, प्रकृति एक अगर थप्पड़ मारेगी ना, है ना, जो आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक है जो दुख है ना,
है ना। तो आसानी से खाली हो सकता है, लेकिन भगवान अर्जुन को श्रेय देना चाहते थे, आपने भक्त का गुणगान करना चाहते थे, इसलिए उन्हें इतने बड़ा महाभारत को रचना की है संतति। तो इस प्रकार से जब नारद मुनि वहां उतरे, अपने ये को साथ देखे दूर से कि जो जो आ रहा है मृगारी, वो टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है एक्चुअली। बोले देखिए, जो व्यक्ति इतने बड़े बड़े जानवर को आधा मार के तड़पते हुए आनंद ले रहा था, आज देखिए एक्चुअली उसने एक चींटी के प्रति अत्याचार नहीं होना चाहिए, चींटी के जान नहीं जाना चाहिए, तो इसलिए इतना सावधान से क्या कर रहे हैं, वो चल रहा है, आ रहा है को मिलने के लिए। देखिए उत्कंठा तो है, मेरे को गुरु जी आए उनको मिलना है, लेकिन इतना सावधानी से है कि चाहे किसी का, किसी भी जीव की भी हत्या नहीं होना चाहिए, जीव हिंसा नहीं होना चाहिए, जीव का हत्या नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रोपा जी बोलते हैं, हाँ तो हम तो बोले कि हम कहाँ जीव हत्या कर रहे हैं, हम तो मांसाहार नहीं कर रहे, हम बचपन से शाकाहारी है। प्रोपा जी बोलते शाकाहारी, हाँ बंदर भी शाकाहारी है, हाथी भी शाकाहारी है, कई सारे मनुष्य से शाकाहारी है। हमको शाकाहारी नहीं बनना चाहिए, हमको कृष्णाहारी बनना चाहिए, कृष्ण का भोजन खाना चाहिए, कृष्ण का प्रसाद खाना चाहिए। क्या आप लोग भगवान कृष्ण को भोग लगा के प्रसाद खाते हैं? हरे कृष्णा जब खाएंगे तो भगवान बोलते कि मैं इस पाप को निकाल दूंगा, आपको पाप खाना नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसलिए हमारा मन भ्रमित होता है, इसलिए हमारा भजन में मन नहीं लगता है, इसलिए हम सुबह उठ नहीं पाते हैं, इसलिए हम नियम नहीं पालन कर पाते हैं। हाँ क्यों? क्योंकि जैसा भोजन ऐसा मन करते हैं। हमारा भोजन क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए असंतति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से वो जो माता केतकी थे, हम सुदर्शन केतकी माता, वो क्या कर शरीर में साख बता रहा था, हाँ। तो वही दुर्वासा मुनि हस्तिनापुर में आए और दुर्योधन का अतिथि सत्कार किए। उनको तो 56 मुंह खिला होगा दुर्योधन, पलक में सुला होगा, क्या क्या नहीं किया होगा, इतने प्रसन्न हो गए दुर्वासा मुनि, है ना। उनका नाम है दुर्वासा, दुर्व घास पता है ना, घास घास, तो उसी को खाते थे दुर्वासा मुनि, इसलिए उनका नाम है दुर्वासा, इतने तपस्वी थे। है नहीं, तो भी इतने इतना बड़ा संत बने, इतना महात्मा बने, जोगी बने। तो जब दुर्योधन के पास आया, दुर्योधन इतना खुश किया, और दुर्वासा मुनि बोले कि बताइए क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए, क्या वर मांगे बताइए। दुर्योधन लगता है कि दुर्योधन बहुत नमो भावदन्य है, बहुत परोपकारी है, पर दुखी दुखी है नहीं, दुर्योधन क्या है, पर दुख है सुखी है, और पर सुख है दुखी है वो। तो उसने बोला कि इस वक्त मेरा भाई लोग पांडव लोग वनवास कर रहे हैं, हाँ आप जाइए, काम्य वन में थे, वृंदावन में काम्य वन में थे वो लोग, वो जगह अभी भी है, आप जाइए उनका आतिथ्य सत्कार कीजिए, भोजन, ब्राह्मण आते तो क्या किसके लिए आते, घर में प्रसाद के लिए आते, ब्राह्मण भोजन प्रिय, है ना। लेकिन दुर्योधन ने बोला कि आप कौन सा समय पे जाना चाहिए, हमको पता है एक्चुअली भोजन होता है दोपहर के समय में, या सुबह नाश्ता सुनते हैं, आपको जाना चाहिए भोजन हो जाने के बाद। पांडव कितना क्रूर व्यक्ति है, देखो कितना मानो श्रूड व्यक्ति है, कितना बदमाश है दिखे होते हैं। और दुर्वासा मुनि चले गए होते हैं, अकेले नहीं गए, 60,000 शिष्य लेके गए थे, है ना। और जाके उनको पहुंचे, और फिर उन्होंने बताया कि ऐसा है, तो भोजन तो हो गया था पांडव लोग क्या, और द्रौपदी महारानी के पास तो अक्षय पात्र प्राप्त हुआ था। हाँ यहाँ पे देखिए दुर्योधन इतना ऐश आराम में था, पूरे चक्रवर्ती सम्राट था, कुछ कमी नहीं था, और यहाँ पे पांडव लोग जंगल में हैं, क्या मिल सकता है उनको देखिए। लेकिन कभी भी उन्होंने किसी ब्राह्मण का, कोई भी आता था भोजन करने के लिए, चाहे कितने भी आते थे, उनको भोजन कराते थे, कुछ कमी नहीं था, दान दक्षिणा भी देते थे। कहाँ से प्राप्त होता था बताइए, जंगल में रह के भी, और यहाँ ऐश आराम में रह के भी आप सोचते थे कि वो ठीक से आतिथ्य नहीं कर पाता था, तो क्या अपना मन तो संतुष्ट नहीं था। तो व्यक्ति का चाहे कुछ भी हो, अगर अपने मन संतुष्ट नहीं है ना, तो चाहे कुछ भी होने से बाद क्या होगा बताइए, संतुष्ट नहीं है अपने तो बनते। तो लेकिन ये पांडव लोग थे, क्योंकि भगवान के आश्रित थे वो, भगवान के शरणागत थे, भगवान के ऊपर निर्भर करते थे, इसलिए थे, इसलिए उनको द्रौपदी महारानी को सूर्य देव के द्वारा ये अक्षय प्राप्त प्राप्त हुआ था।
लेकिन उसका एक नियम था कि जब तक द्रौपदी महारानी भोजन नहीं कर चुकी तब तक वो चाहे कितना भी आए, कोई आए उनको खिला सकता है, कितने मात्रा में आए कोई भी नहीं, लाखों करोड़ में थी। उसी दिन तो खा चुकी थी, साफ भी हो गई थी। और ये आके पहुंचे और बोले कि मैं स्नान करके आता हूँ अभी यमुना में, और चले गए, है ना। और द्रौपदी महारानी को क्या हुआ, चिंता हुआ, अभी क्या करो। तो भक्त जब चिंता में रहता है, भक्त जब परेशान में रहता है, वो किनको पुकारता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या हमरा जो हमको जब चिंता आता है, परेशानी तो आता है ना, आता है कि नहीं? हरे कृष्णा, आप सबको परेशानी है कि सुखी है अब? यस प्रभु जी, बहुत परेशानी है प्रभु जी। बहुत परेशानी है। हालत हरे खराब है कृष्णा, अभी तो अभी। किनको पुकारते हैं आप? भगवान को प्रभु जी, किनको पुकारते हैं, पुकारना चाहिए। भगवान को। हाँ, नहीं भूल जाते हैं। हमको लगता है कि मम्मी, डैडी, भैया, मामा, चाचा, काका ये बचा देंगे हमको। नहीं, कोई नहीं बचा सकते, केवल भगवान ही बचा सकते हैं। हाँ, तो द्रौपदी महारानी तो तुरंत पुकारी भगवान को। भगवान द्वारका में थे। हाँ, भगवान द्वारका में थे, तुरंत प्रकट हुए वृंदावन में, काम्य वन में। और बोले बहुत जोर भूख लग रहा है। अब इतना लंबे से आए तो भूख लगेगा ही ना, कुछ तो खिला दो हमें। द्रौपदी महारानी बोले आपको सब पता है, क्यों आप क्यों नाटक कर रहे होते? बोले नहीं नहीं, मैं तो खा चुका हूँ भोजन। बोले लेके आओ पात्र। जो पात्र लेके आए, तो उसमें से एक साग का दान लगा हुआ था। और उसको भगवान कृष्ण क्या किए, एक साग में दाने में किसका पेट भरेगा बताओ? भरेगा नहीं, भरेगा। लेकिन भगवान जो खा लिए क्या हो गया? यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, भगवान का पेट भर गया। भगवान तो प्रेम का भूखे थे ना, भगवान का पेट भर गया। भगवान का जो पेट भर गया, तो यहाँ जो 60,000 शिष्य के साथ वर्षा मुनि स्नान कर रहे थे, तो सबको भी डकार आया एक एक करके। सबको लगा कि हमारा पेट भर गया। दुर्वासा मुनि शिष्य को पूछे, बोला क्या है? बोला अभी तो भूख नहीं लग रहा है। बोला वहां पे भीमसेन आता होगा अभी बुलाने के लिए, इतना देर हो गया, भोजन तैयार है। पति बोला तो भागो एक्चुअली, नहीं तो भीम पकड़ के एक एक को पिटाई करेगा। दुर्वासा मुनि तो उठे एक्चुअली कि ना, तो भागे उसको कपड़ा पहनाते, एक एक करके तो भागे वहां से। और बताए वहां पे भीमसेन, जो इतने बड़े वृकोदर, जिनके अंदर में अग्नि है, जैसे हमारा अंदर में अग्नि है, जठर अग्नि, उनके अंदर भी एक कुछ प्रकार का जो अग्नि है ना। तो उस अग्नि का इतना तेज है, भीमसेन को इतना भूख लगता था, इतना भूख लगता था, कुछ भी भजन कर सकते थे वो, है ना। और फिर भीमसेन को भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, जाओ भैया बुला के लाओ दुर्वासा मुनि को। अभी भगवान भीमसेन सामने देख रहे हैं, है ना तो चूल्हा लगा हुआ है, ना तो एक कन्न है, कुछ भी नहीं है। अभी भगवान कृष्ण बोल रहे कि जाके बुला के लाओ। चले गए। पूछ सकते थे कुछ बना है, कुछ तो बना ही नहीं, कैसे मैं अगर आ जाएंगे सचमुच, है ना, तो मेरा नाक कट जाएगा। नहीं नहीं, भगवान के वाणी में उनको विश्वास था। भगवान के वाणी में उनको विश्वास था। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो गीता में हमको विश्वास होना चाहिए, क्योंकि गीता में भगवान बार बार बोल रहे हैं वचन। तो लोग नहीं मानते हैं, लोग बोलते कि अरे, मायावादी लोग तो मानते नहीं, बड़े बड़े टीकाकार है, लिखते हैं एक्चुअली कि अरे आप शरण जाओ, भगवान के अंदर कोई व्यक्ति है उसका अंदर शरण जाओ। अरे भगवान के अंदर भगवान ही है, उनके शरण में जाओ। मामेकम शरणम ब्रज, मन मना हो मदभक्त मध्याज भी मां नमस्करो, मुझे ही प्रणाम करो। भगवान बोलते हैं मेरा भक्त बनो, मेरा ही पूजा करो, मुझे मेरा ही चिंतन करो। भगवान बार बार बोल रहे, लेकिन लोग बोल रहे कि नहीं और कोई बता होगा। साक्षात तो भगवान कृष्ण तो अर्जुन को बोल रहे थे ना, सामने खड़े होकर बोल रहे थे ना, है कि नहीं? तो कोई आकाशवाणी थोड़ी थोड़ी ना हो रहा था, भगवान तो बोल रहे थे ना। तो पहले भगवान को हमको व्यक्ति रूप में मानना चाहिए। तो व्यक्ति है, तो जैसे हमको भूख लगता है, हमको प्यास लगता है ना, तो भगवान को भी लगा होगा अपने थी। तो इसी से अगर हम आदान प्रदान करेंगे, तो हम भगवान का प्रिय बन सकते हैं। और फिर देखिए दूर से कि भीम से आ रहा है। अब भीम देख रहा है कि अरे लोग तो भाग के जा रहे हैं एक्चुअली, अरे रुक आओ 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 करते थे। तो भीम भी समझ गए एक्चुअली कि क्या रहस्य है। यस्मिन तुष्ट जगत तुष्ट, चले गए।
है ना। तो इस प्रकार से वो जो कहते की माता थी वो रोज एक्चुअली भगवान को खिला रही थी और भगवान रोज आके खा रहे थे होते थे, है ना। सुबह सुबह अपने पट दरवाजा मंदिर का पट खुलने से पहले होती थी, है ना। तो ऐसा हो गया कि एक दिन जब पुंडे आके भगवान का दरवाजा खोले तो देखे भगवान के आंखों में आंसू है। तो पंडा बोला क्या हो गया, अब क्यों रो रहे हो। जगन्नाथ जी बोले कि मेरा माँ चली गई। तो पंडा बोला, क्योंकि माँ मानते थे उनको, कहते कि माँ मानते थे। तो पंडा बोला कि आपने उनको जाने क्यों दिया, है ना। प्रकृति क्रियामणि गुणे कर्मस्य इसे भगवान के तो नियम के अनुसार हर व्यक्ति है ना। तो भगवान अगर चाहते थे तो उनको और रोक सकते थे ना, उनको बचा सकते थे ना। आपने उनको जाने क्यों दिया, पंडा जी बोल रहे कि आपने उनको जाने क्यों दिया, है ना। तो तब से ऐसे नियम हो गया कि हाँ, भगवान जगन्नाथ जी के जो पहले पट खुलता है तो ये जो भोग है इसको नाम है कर्मा बाई खिचड़ी। बहुत सीधी है, कोई भी बना सकते हैं इसको। चावल है, छिलका मूंग है, जीरा है, अदरक है, कड़ी पत्ता है ना, हींग है और घी है बस। हाँ, तो ये इसको पहले भोग बोलता है क्योंकि पहला भोग लगता है जगन्नाथ जी को, है ना। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी जो भक्त वत्सल है ना। के भी कोई भी कैसे भी उनको भगवान पकड़ इसलिए बताया था कि मेरे डोरी तेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ। अर्जुन ने क्या किया, आपने जो डोरी है ना उन्होंने क्या कर दिए, भगवान को दे दिए कि आप मेरा तुम मेरा रक्षा लाओ। तो इसलिए हमारा जीवन का जो डोरी है हमको किसको देना चाहिए, समर्पित करना चाहिए, भगवान को समर्पित करना चाहिए। आप मुझे जैसे नचाओ मैं ऐसे नाचूंगा, आप मुझे जैसे कहते हो मैं, लेकिन मैं आपको कभी भूलूंगा नहीं, मैं आपको सदा याद करूंगा। तो इसे याद करने का बहुत ही आसान तरीका है कलयुग में। हरे नाम हरे नाम ही केवलम, कलो नस्ते वनस्ते व गतिरन्यथा। कलि संतरण में उपनिषद में बताया गया कि सबसे आसान तरीका है कलयुग में ये भगवान हरि का नाम होते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से हरे कृष्णा समय है आपके पास किस, मुझे 4 से 5 बजे तक बताया गया था। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ यस प्रभु जी, ये जी प्रभु जी। समय है, यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। आपको सुनाई दे रहा है। हो प्रभु जी, समय आहे। आपका समय हो गया शिवा प्रभु। हाँ यस प्रभु जी। समय समय हो गया, भोजन का समय हो गया कि क्या? नहीं समय है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हो प्रभु जी, यस, भरपूर समय आहे प्रभु जी। अच्छा समय है और 10 मिनट बोले। हो प्रभु जी, कंटिन्यू करा। हरे कृष्णा। आप लोग म्यूट कीजिए। हरे कृष्णा, है ना। तो अभी जैसे मैं पिछले हफ्ते में बता रहा था जगन्नाथ जी रथ यात्रा के दिन जगन्नाथ वो इस जो केवल 9 दिन के लिए, क्योंकि जब जगन्नाथ जी का विग्रह बन रहा था तो वो जो अनंत महाराणा बताया था कि 21 दिन तक मेरा दरवाजा नहीं खुलना चाहिए, 21 दिन में मैं पूरा हो जाऊंगा। हाँ, जैसे माता के घर में जो बच्चा रहता है 10 महीना में पूरा हो जाता है, और कभी कभी बच्चा अगर पहले जन्म लेता है तो बच्चा विकलांग हो जाता है ना। तो इस प्रकार जगन्नाथ जी का जो रूप है क्या अधूरा है, पूरा नहीं है ना। क्योंकि उन्हें 12 दिन के बाद उनके दरवाजा खोल दिए थे माता गुंडीचा के कहने पर। माता गुंडीचा इतने व्यस्त हो गए कि अंदर से आवाज नहीं सुना दे रहे, तो शायद महाराणा मृत्यु हो गया, हमको अभी पाप लगेगा, है ना, नर हत्या का पाप लगेगा। तो इसलिए उन्होंने अस्त व्यस्त होकर क्या किया, दरवाजा खोल दिए। जगन्नाथ जी को प्रकट होना था इस रूप में, तो देखे कि अधूरा है रूप। तो इसलिए जगन्नाथ जी ने अपने माता गुंडीचा देवी को ये आश्वासन दिया कि क्योंकि मैं अधूरा हूँ इसलिए
9 दिन के लिए, क्योंकि अभी 12 दिन तो हो गया था और 9 दिन बाकी था 21 दिन से, इसलिए 9 दिन के लिए मैं आपके साथ रहूंगा, आपके साथ यात्रा करूंगा। तो ये जगन्नाथ जी का जो रथ यात्रा होता है, ये 9 दिन के लिए गुंडीचा से लेके द्वितीया से लेके अभी एकादशी तक जगन्नाथ जी वहां पे रहेंगे, गुंडीचा मंदिर में रहेंगे, फिर वापस आएंगे। तो इस समय में अगर कोई जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी इतना महाभाव है, नमो महावदन्य है ना, 10,000 गुना फायदा मिलता है। बताया जाता है कि उसी समय कोई इसी पीरियड में कोई जगन्नाथ जी का दर्शन करता है ना। तो हम तो अभी लॉकडाउन में है, लॉकअप में है, लेकिन आपके वहाँ तो जगन्नाथ जी है, जगन्नाथ जी तो हर हर जगह पे है ना। तो हम जगन्नाथ जी के कथा के माध्यम से उनका दर्शन का जरूर फायदा उठा सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से पुरी में और एक घटना हुई, जैसे प्रतिदिन राजा जगन्नाथ जी का, आपको पता है जगन्नाथपुरी में जो राजा होते हैं, बताते हैं कि वो प्रथम सेवक है। जगन्नाथ जी का प्रथम जो सेवक है वो राजा बनाता है। तो इसलिए जगन्नाथ जी का रथ यात्रा के दिन राजा स्वयं आते हैं और आके जगन्नाथ जी के रथ के सामने क्या करते हैं, झाड़ू लगाते हैं। और हमको लगता है कि झाड़ू देना मतलब क्या है, झाड़ू देना मतलब क्या है, भंगी, सबसे नीच काम है, लगता है ना। हाँ प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, लेकिन ये जगन्नाथ जी जो भगवान जगन्नाथ जी का मतलब ये पुरी का जो राजा है, तभी पुरी का राजा मतलब वहाँ पे मध्य प्रदेश, इधर उड़ीसा, इधर आंध्र प्रदेश, इधर तमिलनाडु, है ना, ऐसे 5 जो ये था उसके राजा थे एक्चुअली। इतने बड़ा उसे उत्कल प्रदेश माना जाता था तभी, इतने बड़े राजा थे, इतने महानता थे, है ना। तो एक बार राजा हर रोज रात को आते थे, दर्शन करते थे सायं के समय, और उनको भगवान जगन्नाथ जी का महामाला वो उनको प्राप्त होता था, लेके जाते थे। तो एक दिन जगन्नाथ जी राजा का थोड़ा देर हो गई। तो जो पंडा को लगा कि, जो पंडा का नाम था तलिछा महापात्र उसका नाम था, तो उसको लगा कि आज राजा नहीं आएंगे। तो उसने क्या किया, महाप्रसाद है, जो भी जगन्नाथ भगवान को भोग लगता है वो क्या महाप्रसाद है। हमको लगता है कि खाना मतलब केवल महाप्रसाद है, नहीं। जगन्नाथ जी का वस्त्र, जगन्नाथ जी का चंदन, जगन्नाथ जी का माला, जगन्नाथ का मुकुट, जो भी भगवान को लगता है वो महाप्रसाद होता है ना। तो कितना हमको आदर करना चाहिए, ठीक है नहीं। तो उसने माला ने उन्होंने पहन लिए, पुजारी ने पहन लिए। हाँ, उसी समय देखे कि वो राजा आ रहे, और राजा तो ऐसे नहीं आ रहे, रात ठाट पाट में आते हैं, अपने गाड़ी घोड़ा बाजा वाजा लेके आते। तो पंडा ने जो पता चला, पंडा ने क्या किया, तुरंत माला निकाल दिया, और माला निकाल के अभी राजा आए तो उनको पहना दिया गले में ही। तो राजा ने तो पहन लिया माला, और राजा कुछ लगा नहीं, तो राजा दर्शन करके चले गए। घर में जाके राजा जब माला उतारे तो उसमें एक लंबा सा बाल दिखाई पड़ा। तो राजा को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि जगन्नाथ जी के गले में, जगन्नाथ जी के सिर में बाल कब से आ गया। तो तो राजा ने तुरंत क्या किया, पंडा को बुलाया, रातों रात उनको बुलाया। तो पंडा तो पहले तो डर रहा था, उनको पता था क्योंकि उन्होंने गड़बड़ी की है, गलती की है। माला, क्योंकि जब दूसरे जगन्नाथ जी का माला हमने खुद पहन लिया, है ना, तो हमारा मतलब वो झूठा हो गया ना। तो हमारा झूठा राजा को कैसे दे सकते हैं, तो झूठा हो गया ना। तो डर रहा था कहीं पता चल जाएगा, तो उसका लगा कि शायद राजा को पता चल गया। तभी जमाने में तो सीसीटीवी कैमरा नहीं था। अभी हम कुछ होगा तो सीसी कैमरा में देख लेते। बहुत एडवांस हो गई टेक्नोलॉजी। लेकिन परमात्मा सबके हृदय में है, हम किसको धोखा नहीं दे सकते। सबके हृदय में सीसी कैमरा है, परमात्मा वो सब देख रहे हैं। हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब देख रहे हैं, सब देखते हैं, उसका विचार होगा बाद में, है ना। हम किसको धोखा नहीं दे सकते। अगर हम धोखा दे रहे तो खुद को धोखा दे रहे। हरे कृष्ण। हाँ, तो राजा बुलाया चलित, तो उन्हें जाके प्रणाम किए। बोले अच्छा तालिछा महापात्र बताओ, ये जगन्नाथ जी के सिर में कब से बाल आ गया होते थे। तो ये तालिछा महापात्र तो इतने डरा हुआ था, तो बोला हाँ हाँ है, जगन्नाथ जी के होते। तो बोला क्या उम्र में थे, बाल कब से आया, बता। हाँ है बोले। तो राजा तो पता था कि कुछ तो गड़बड़ किया है।
तो राजा ने उसको बोले कि मैं कल सुबह मंगल आरती में दर्शन करूंगा, आऊंगा, तो मुझे बाल दिखाना दे दें। अगर नहीं दिखा पाया तो मृत्युदंड, कड़ी सजा मिलेगी। तो उसने तो प्रणाम करके आ गया, और रात को सोएगा क्या पता नहीं। रात भर वो सो नहीं पाया। जगन्नाथ जी को क्या कर रहा था, बार बार प्रार्थना करता, मुझे बचाओ हे दीनबंधु, हे प्राण बंधु, हे दीनानाथ, है ना, मुझे, हे करुणा के सागर, हे जगन्नाथ जी, मुझे बचाओ, अचली भक्ति। तो जगन्नाथ जी उसको रात पे स्वप्न आया। बोले बोले क्या हो गया, क्यों डर रहे हो, क्या हो गया? तो उसने बताया अपनी। राजा बोले क्या, आपको पता नहीं, मेरा माँ यशोदा मई, हाँ, मेरे को कंघी करती थी। भगवान के बाल कैसे था, कृष्ण यशोदा है ना, यशोदा मई भगवान कृष्ण को श्रृंगार करते थी, घुंघराल बाल है, इसलिए भगवान कृष्ण का एक नाम क्या है, केशव। भगवान कृष्ण का एक नाम क्या है, केशव, है ना। चाहे हम हमारा बाल को कितना भी साजाने चाहेंगे, एक दिन हमारा बाल सफेद हो जाएगा, और कहीं अगर तो बाल भी निकल जाता है। इसलिए उनको कितना हेयर ऑयल लगाना पड़ता है, कितना क्रीम लगाना पड़ता है सजाने के लिए। लेकिन भगवान का बाल तो ऐसे ही सुंदर है, घुंघराल है, केशव। तो बोले आपको पता नहीं, मेरा माँ मेरे को श्रृंगार करती थी, मेरा नाम केशव है, तो क्यों डर रहे हो? बोलो आने दो, बोलो। जगन्नाथ जी तो बोल ही दिए, लेकिन उसको भी विश्वास कहाँ है उससे थे। तो सुबह तक तो रात को सो नहीं पाया, तो कैसे भी तो करके सुबह आया, और आए पंडा, राजा आया, एक्चुअली कि दरवाजा खुला गया, राजा आया, दर्शन किए, प्रणाम किए, और प्रणाम किए कि राजा को दिखाई पड़ा कि भगवान तो मुकुट पहनते हैं, और मुकुट के पीछे क्या है, बाल है। तो राजा तो और आश्चर्य हो गया। राजा मन में विचार करना, अच्छा, ये नकली बाल लगा दिया ला क्या, शायद रात को कहीं जाके, तभी तो उस जमाने में बाजार बाजार वो था ही नहीं एक्चुअली, कहीं से लाके सालून फालून लाके के नकली बाल एक्चुअली लगा दिया। तो जगन्नाथ जी, राजा ने बोले कि मेरे को देखना है। तो आपको पता है रत्न सिंहासन में बैठते हैं जगन्नाथ जी, रत्न सिंहासन में बैठते हैं, जो करीब करीब 10 फीट होगा, हम वहां तक नहीं पहुंच सकते, और उसके ऊपर बैठते हैं। तो जो जो भी है सीढ़ी वगैरह है कि राजा ने क्या कि चढ़े ऊपर, जगन्नाथ के ऊपर चढ़े दिखाने के लिए, और उस मुकुट उतर गया। मुकुट तो पूरा बाल दिखाई पड़ा। और राजा ने क्या किया, देखो क्या, राजा तो इतना गुस्सा हो रहा था, बोला एक तो झूठ बोला, और झूठ केवल झूठ नहीं बोला, झूठ बोलने के बाद भी कितना आयोजन किया है नकली बाल लगा के। तो राजा ने क्या किया, बाल को पकड़ के खींच दिए। जब खींच दिए तो वहां से खून निकलने लगा, जगन्नाथ जी का शरीर से खून निकलने लगा। तो राजा तो वहीं से अचली बेहोश होके ऊपर से गिरा, भगवान के चरण कमल से जगन्नाथ जी के साथ दंडवत करने लगा, माफी मांगने लगा, और तालिचा महापात्र उस, उसको भी बार बार हंस के प्रणाम करने लगा, है ना। हाँ, तो इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान जो है कितने दयालु है, कितने कृपालु है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को बताया कि नमो महावदान्य, हाँ, हे कृष्ण करुणा सिंधु, कृष्ण जो है करुणा का सिंधु है। नमो महावदन्य कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। ये पतित का पावन है, ये पतित को उद्धार करने के लिए आए जगन्नाथ जी, है ना। लेकिन हमारा कमियां है कि हम अपने आप को पतित मानते नहीं है, हम अपने आप को बड़े होशियार मानते हैं, है ना। तो जो अपने आप को पतित मानेगा, जगन्नाथ जी उनको क्या करेंगे, अपना बना देंगे। जो अपने आप को पतित नहीं मानेगा, जगन्नाथ जी बोलेंगे ठीक है, तुम यहाँ पे बड़े होके रहो, मुझे कोई परवाह नहीं आपसे थी। तो हम यहाँ पे हैं, बड़ा बन के रहना चाहते हैं, दुख भोगना चाहते हैं, कि छोटा बन के भगवान को अपनाना चाहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब से जो पंडा था उसका नाम है चालीसा महापुत्र। तो इसलिए भगवान का शरीर को हमको कभी नहीं मानना चाहिए कि कोई लकड़ी का है, मिट्टी का है, पत्थर का है। हाँ? प्रतिमा नाही तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, प्रतिमा नाही तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। तो जिस भाव से हम भगवान का सेवा करेंगे, पूजा करेंगे,
भगवान भी इस भाव से हमको हमारे साथ आदान प्रदान करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम आपसे विदाई लेते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो हम आशा करते हैं कि आप अच्छा से भगवान का नाम जप करते होंगे, भगवान का प्रसाद आस्वादन करते होंगे, सुबह उठते होंगे ना, गीता पढ़ते होंगे, प्रभुपाद जी का पुस्तक अध्ययन जरूर करते होंगे। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है, कोई प्रिय है, शंका है? हरे कृष्णा। सबका माला हो रहा है? हाँ जी प्रभु जी। माला हो रहा है, ध्यान पूर्वक माला हो रहा है। हाँ जी प्रभु जी। हो रहा है, और ध्यान पूर्वक कीजिए। ध्यान पूर्वक करने हरे का कृष्णा। कोशिश कर रहे हैं प्रभु जी। हाँ ध्यान पूर्वक करने का कोशिश कर रहे हैं प्रभु जी। कोशिश करिए, कोशिश कीजिए। वो आपको, हम कोशिश करेंगे तो भगवान हमको शक्ति देंगे। जी ओके, भगवान हमको मदद करेंगे। जी हाँ, कोशिश नहीं करेंगे तो भगवान कैसे मदद करेंगे? जी ओके। जी। आज प्रतीक प्रभु प्रसाद हरे बना के हरे लाए कृष्णा। प्रभु जी, कोई बहुत प्रश्न अच्छा है? लगा। प्रभु जी कुछ प्रश्न पूछेंगे? हाँ हरे कृष्णा। जी गिरिराज प्राण प्रभु की जय हो। प्रभु जी। दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। हाँ। प्रभु जी जैसे कि आप अभी जैसे कि कथा में बताए कि जैसे वो भगवान जाते हैं माता जी के पास जो खिचड़ी खाते हैं, तो उनको उनके भाव को ग्रहण करते हैं। जैसे उनको मंत्र वगैरह पंडा बताते हैं तो भगवान को लेट हो जाते हैं और उनको उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो जैसे हमको लेक्चर में बताया जाता है कि हमको ये सब फॉलो करना चाहिए, और उधर भगवान बिना फॉलो के ले रहे हैं, तो उसमें थोड़ा मन में ऐसा वो मतलब। प्रेमा भक्ति थे, वो हम लोग साधक है, साधना भक्ति है हमारा। जी समझ ना? जी वो जो है भगवान के नित्य परिकर है, तो उनको शुद्ध नहीं बनना पड़ता है, ऑलरेडी शुद्ध है। वो राग भक्ति करते हैं, उनको भगवान के साथ राग है, मतलब अटैचमेंट है, आसक्ति है। हमारे भगवान के साथ आसक्ति नहीं है। समझ गए ना? जी प्रभु। हरि बोल। जैसे हमारे बच्चे को हम परिवार करते हैं, बराबर ना, बच्चे को रात को भूख लगता है तो माता तुरंत जो भी है खिला देती है, बराबर ना? जी हरे कृष्णा। जी प्रभु हाँ जी। हाँ, हमारा परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी को बताते हैं, आप सबको उसका अनुभव होगा, है कि नहीं? अगर हम देखते हैं कि बहुत ही क्रूड एग्जाम्पल है। हरे कृष्णा। आप म्यूट करेंगे? हाँ, नेत्रपाल सिंह जी। हाँ प्रभु। हाँ हरे कृष्णा। हाँ म्यूट कीजिए ताकि सब कुछ सुनाई देगा। हरे कृष्णा। तो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे, जैसे हमारा मल जो है ना, देखिए, है ना, कि नहीं, हम जब मल त्याग करते तो क्या हाथ को साबुन में, सैनिटाइजर में 2-4 बार धोते हैं कि नहीं? बराबर ना? लेकिन जब अपन माता अपने बच्चे का मल साफ करती है तो ऐसे ही पानी में, कपड़ा में पोंछ लेती है, हाथ में धोती है। हाँ, क्योंकि बच्चे के प्रति उसके इतना आसक्ति है, तो उसको मल जो है ना, उसको गंदगी नहीं लगता है। हाँ, और परम मुझे राधा गोविंद महाराज बताते हैं कि कभी कभी बच्चा आके आपके भोजन में अगर पेशाब पेशाब कर देता है ना, तो भी आपको नहीं खराब नहीं लगता है कि अरे भोजन खराब हो गया। हाँ, हम कोई अगर पेशाब करेंगे तो करेंगे भोजन नहीं, क्योंकि आसक्ति है बच्चे को। तो इसलिए बच्चा भी क्या करता है, माता के ऊपर इतना निर्भर करता है, कुछ भी हो जाए तो एक्चुअली उसको कोई चिंता नहीं है, उसको चिंता है कि मेरा माता मुझे बचाएगी, मेरे पिताजी बचाएगी, क्योंकि एक कनेक्शन है, ये आसक्ति है। तो हमारा अंदर अगर भगवान के प्रति आसक्ति होगा तो कोई नियम नहीं है, कभी भी उठेंगे, कभी भी जप करेंगे, इसलिए कोई नियम नहीं, है ना? लेकिन हमारे लिए नियम बनाया गया क्योंकि हम साधक है, साधना भक्ति है ना? नियम से होना चाहिए हमको।
हरे कृष्णा। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि संख्या पूर्वक नाम गण। कुछ लोग बोलते हैं ना मैं मन में करता हूँ, दिन भर करता हूँ संख्या पूर्वक, लेकिन जो भोजन आता है तो फिर आप बैठ के राइस दाल चावल चपाती गिन के ही खाते हैं ना, क्योंकि मन में खा लेते नहीं, नहीं ना। तो इसलिए जो नियम है नियम हमको पालन करना चाहिए, क्योंकि हम साधक है। जो हम बड़े हो जाएंगे भगवान के प्रति और जो आसक्ति हो जाएगा। इसलिए ब्रज में क्या करते थे, झूठा खिलाते थे भगवान को, खिलाते थे कि नहीं। कृत पुंज पुण्य, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि ये ग्वाल वाल का क्या भाग्य है, देखिए भगवान के कंधे में चढ़ते हैं, भगवान को झूठा खिलाते हैं। तो हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमको पुण्य कमाना है। हरे कृष्णा। समझ में आया? यस प्रभु जी। शिवा को समझ में आया कि नहीं? हाँ जी प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। जिसको आता नहीं है, मान लो कि कोई औरत है पढ़े लिखे नहीं है, उसको मंत्र पाठ नहीं आता है, भोग लगाने का मंत्र नहीं आते, तो चलेगा उनके लिए, समझ गए ना, है ना। लेकिन हमारे लिए नहीं, हमको याद करना पड़ेगा। हरे कृष्ण। ठीक है, तो आप सबको जगन्नाथ जी के बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जगन्नाथ जी अभी आपके मतलब जितना भी त्योहार है एक एक करके रख रहे हैं, ताकि बड़ा त्योहार करेंगे जब लॉकडाउन खुलेगा तो। हरे कृष्ण। हरे हाँ कृष्णा प्रभु जी, विनोद प्रणाम। हाँ बोलो, धन्यवाद। प्रभु जी, sometimes we are in the trouble and our faith on the हाँ Lord is diminishing. Means we are losing our faith in the Lord. That Lord will help me or Lord will keep हिंदी me में always. बोलो, बाकी लोग सुन Yes. रहे हैं, हिंदी में बोलो। Yes, yes. प्रभु जी, कभी कभी क्या होता है ना प्रभु जी, जब कुछ कुछ हमको परेशानियां आने लगती है ना, तब भगवान के ऊपर प्रभु जी जो फेथ रहता है, जो हमारा श्रद्धा रहता है, वो उठना शुरू हो जाता है कि मतलब ऐसा लगता है कि लगता है भगवान अब इसी रखेंगे, अब इस सिचुएशन से क्योर नहीं कर हाँ सकते, मतलब अब हमको तो इसी जीना पड़ेगा, भगवान हेल्प करेंगे बट इसमें हाँ हेल्प नहीं करेंगे, ऐसा कुछ लगता है। या मतलब कुछ लोग ऐसा बोलते हैं ना, अब ये तो अपने भाग्य में था, तो ये तो है। तो प्रभु जी, हाउ टू फेस हाँ। दिस टाइप ऑफ सिचुएशन? तो हमारा देखो, भगवान को इसलिए कोई लेना देना नहीं है, हमारा कर्म का फल हमको भोगना पड़ रहा है ना। तो आचार्य बताते हैं जैसे भगवान सारे असुर को मारे एक एक करके। एक असुर था जिसका नाम था अरिष्टासुर। अरिष्टासुर पता है ना? अरिष्टासुर एक बैल बन के आया था, पता है ना? यस प्रभु जी। इतना बड़ा भयंकर बैल था एक्चुअली। वो चलता था तो एक्चुअली जो गर्भवती माता है ना, गर्भपात हो जाती। भगवान कृष्ण को मारने के लिए आया, तो भगवान कृष्ण क्या उसको पकड़े, उसका जो सिंग है उसको तोड़े, सिंग को तोड़ के उस सिंग से मारे उसको। तो एक आचार्य बताते हैं कि अरे भगवान ने नहीं मारे उसको, कौन मारा? उसका सिंग उसको मारा, मतलब उसके जो बुरा कर्म उसको मारा। हाँ, तो इसलिए आपन कर्म भुंजाए समान कहे लोचन दास। हमारा कर्म का फल हमको भोगना पड़ रहा है, बस इसलिए सहन करो। भगवान को इसमें कोई लेना देना नहीं, मेरा कर्म का फल मेरे को भोगना पड़े। मुझे पता नहीं पिछले जन्म में मैंने क्या क्या किया था, इस जन्म में भी कितना पाप किया हूँ, है ना। तो सहन करने लोगो, अभी सहन करेंगे। दो अकाउंट होता है, एक है पॉजिटिव, एक नेगेटिव, मतलब पता है ना। आप तो अकाउंट्स कर रहे हैं ना अभी, ICW कर रहे हैं ना। यस प्रभु जी। हाँ, तो इस प्रकार का दो अकाउंट है, एक पाप का अकाउंट, एक पुण्य का अकाउंट, ना। तो अगर हम हमेशा चाहते हैं कि अच्छा रहे, अच्छा भोजन मिले, अच्छा मिले, सब कुछ अच्छा चले, मतलब पॉजिटिव अकाउंट। लेकिन वो नेगेटिव एक इतना पॉजिटिव है ही नहीं, तो कहाँ से विड्रॉ करे? खाता में पैसा नहीं है तो विड्रॉ कितना पैसा विड्रॉ करेंगे, ओवरड्राफ्ट करेंगे, समझ गए ना, है कि नहीं। तो इसलिए जो बुरा कर्म